بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وصلى الله على محمد وأهل بيته الطاهرين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات۔ ارباب اعضاء، آج 2 محرم الحرام 1446 ہجری، اس تاریخ کی، اس دن کی یاد دلاتی ہے کہ جس دن رسول اللہ کا نواسا، علی کا لخت جگر، فاطمہ کا نازوں کا پلا 6 مہینے کے سفر کے بعد دشت کربلا میں پہنچا۔ بس ابتدائی 2 منٹ حسین کربلا میں پہنچے، اور کربلا میں جانے کے بعد حسین ابن علی نے سب سے پہلے زمین کربلا کو خریدا، اور کوئی چھوٹی موٹی جگہ نہیں خریدی حسین نے۔ حسین ابن علی نے 60 مربع میل جگہ خریدی۔ جگہ کیوں خریدی حسین نے؟ رہنا تو نہیں تھا نا حسین ابن علی کو؟ وجہ کیا تھی؟ حسین نے جگہ خرید کر قیامت تک کے آنے والے بد نسب مورخوں کی زبان پہ تالے ڈال دیے۔ حسین نے بتا دیا، دیکھو ہم نے زمین خریدی ہے، ہم نے خیمے لگائے ہیں، ہم اپنے گھر میں چین سے بیٹھے ہیں، جو ہم پہ اٹیک کرنے آیا ہے وہ یزید دہشت گرد ہے، وہ ظالم ہے، ہم مظلوم ہیں۔ اور زمین خریدی، اور زمین خریدنے کے بعد فرزند رسول نے حکم دیا کہ خیموں کو لگا دیا جائے۔ خیمے لگا دیے گئے۔ میری مائیں بہنیں چند لمحے کے لیے خاموش ہو کر یہ چند فقرے مصائب کے ہیں، ان کو سنیں۔ خیمے لگا دیے گئے، زمین خریدی تھی امام مظلوم کربلا نے۔ کربلا کے پاس ایک قبیلہ رہتا تھا جن کی یہ زمین تھی، جس کا نام تھا بنو اسد۔ بنو اسد سے زمین خریدی، خیمے لگے ہوئے ہیں، بینامہ ہونے لگا۔ جب بینامہ ہونے لگا تو ایک مرثیے کی روایت پیش کر رہا ہوں، بہت گریہ کریں گے آپ۔ دیکھیں کربلا میں بیٹھے ہیں، اور آپ کے سامنے ابو الفضل عباس کا روزہ بھی ہے، سرکار سید الشہداء کا روزہ بھی ہے۔ آپ ان دونوں کو پرسا دیجئے۔ جلوس عزا آپ شروع سے کربلا تک لائے، اس کا بھی ایک اپنا الگ مرتبہ ہے جلوس کا۔ دہلی کے اندر جب اورنگزیب نے جلوسوں کو بند کیا، پابندی لگا دی 1 سال کہ اس سال 10 محرم کی کوئی مجلس نہیں ہوگی، پابندی لگ گئی۔ عاشور کا دن آ گیا، تمام حسین کے چاہنے والے، تمام رسول کے چاہنے والے، تمام اہل بیت کے سچے چاہنے والے گھروں میں بیٹھے ہیں، رو رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں۔ حکومت مطمئن دربار میں بیٹھی ہے کہ آج حسین کا جلوس نہیں نکلے گا۔ اچانک سے بادشاہ ملعون اورنگزیب کے کان میں آواز آئی، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ اس نے وزیر سے کہا، دیکھو تو صحیح کس نے ہماری مخالفت کی۔ معلوم ہے کیا دیکھا وزیر نے جا کر؟ وزیر نے دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو لبیک یا حسین کا نعرہ لگاتے ہوئے محل کے برابر سے نکل رہے ہیں۔ بادشاہ نے پوچھا کون ہے؟ کہا یہ خود دیکھ لیجئے۔ اب آپ کیسے سنے مجھے نہیں پتا، بس اتنا میں کہہ رہا ہوں آپ سے پھر کہ میری مائیں بہنیں بھی، آپ بھی کربلا میں بیٹھے ہیں۔ عزیزو، جب
रोता हुआ आया, जुलूस में चला। कहा आखिर क्या बात है, तुम तो जुलूस में पाबंदी लगा रहे थे। उसने कहा जो मैंने देखा वो मैं नहीं बता सकता। का नहीं बताइए क्या देखा? कि मैंने देखा इस जुलूस में रसूल भी नंगे सर थे, इस जुलूस में फातिमा भी नंगे सर थी, इस जुलूस में हसन मुर्तज़ा भी नंगे सर थे। अज़ादारों बड़ी अज़मत है जुलूस की। थोड़ा आवाजों को बुलंद कीजिएगा। तो मुहर्रम है, मैंने सुबह मजलिस में कहा था, तो मुहर्रम आसान नहीं है। तो मुहर्रम यानी हुसैन के उजड़ने का पहला दिन, तो मुहर्रम यानी ज़ैनब के उजड़ने के अय्याम शुरू हो गए। और मैं ऐसे नहीं, मर्सिये की जो रिवायत बयान कर रहा था वो ये है कि जब खेमे लग गए, हुसैन इब्ने अली के पास जनाब अब्बास आए, मौला एक लम्हे के लिए शहजादी ज़ैनब आपको खेमे में तलब कर रही हैं। जनाब इमाम हुसैन उठे, खेमे में पहुंचे, बहन किस लिए बुलाया है? ए भैया, अभी जब मैं खेमे में आ गई ना, बैठ गई, अचानक से एक हवा चली, मेरे सर से चादर उतर गई। भैया मेरे सर से चादर उतर गई, मेरा दिल घबरा रहा है, खुदारा कहीं और जाके खेमे लगाओ। हुसैन ने उस वक्त एक जुमला कहा, बहन जिसका अब्बास जैसा भाई हो उसे क्या घबराने की जरूरत है। लीजिए, हुसैन वापस जाके बैठ गए, जमीन खरीदने लगे, पैनामा होने लगा। फिर फिजा आई और आने के बाद अल्लाह जाने हुसैन के कान में क्या कहा कि हुसैन इब्ने अली दहाड़े मार के रोने लगे। अल्लाह जाने वो जुमला आप कैसे सुनेंगे जिसको सुनकर हुसैन दहाड़े मार के रोए, हुसैन दहाड़े मार के रोए। असहाब ने पूछा, अंसार ने पूछा, अकरबा ने पूछा, औलाद ने पूछा, भाइयों ने पूछा कि मौला क्या वजह है, कैसा फिजा ने क्या कह दिया? हुसैन ने कहा, फिजा ने कहा है कि मेरे भाई ये तुम जो करबला की जमीन खरीद रहे हो ना, इसका बैनामा मेरे अकबर के नाम करना। मौला फिर इसमें रोने की क्या बात है? हर बाप प्रॉपर्टी बनाता है, औलाद के नाम करता है। कहाँ उस औलाद के नाम करता है जो औलाद जिंदा रहने वाली हो। अरे मेरा अकबर मेरे सामने दम तोड़ के मर जाएगा। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। और आवाजों को बुलंद करें। पैनामा हो गया। हुसैन फरमाते हैं ए बनु असद के मर्दों, देखो बात सुनो, हम यहाँ ज्यादा दिन रुकने वाले नहीं हैं। 8 दिन के बाद हमें शहीद कर दिया जाएगा। तो मैं तुमको वसीयत करता हूँ, आना हमारे लाशों को दफन करके चले जाना। अल्लाह अकबर। हुसैन की गुर्बत, वसीयत कर रहा है फातिमा का लाल, हमारे लाशों को दफन करके चले जाना। उन्होंने वादा कर दिया कि अच्छा जाओ अपने घर की औरतों को भेज दो। बनु असद की औरतें हुसैन के खेमों में जमा हो गई। एक मर्तबा हुसैन इब्ने अली ने उन औरतों से पर्दे के पीछे से गुफ्तगू की, ए बीबियों, अगर तुम्हारे शौहर जालिमों के डर से ना आ पाए तो तुम आना, हमारे जनाजों को कब्रों में दफन कर देना। अरे हुसैन को कितना बड़ा अरमान था कि हमारा जनाजा दफन हो जाए, मगर हाय गुर्बत, उसी हुसैन का जनाजा मक्तल की जमीन बेकफन लाशा। औरतें जाने लगी, वसीयत की, औरतें जाने लगी। कभी भी हो जा रही हो, तुम्हारे घर में छोटे छोटे बच्चे भी होंगे। मेरे बच्चों तुम्हें सुनो, तुम्हें हुसैन को कितना भरोसा है तुम पर। हुसैन इब्ने अली कहते हैं बच्चे हैं? हाँ मौला, आपकी दुआओं से हर घर में बच्चे हैं। का जाओ अपने बच्चों को भेज देना। बच्चे आ गए। हुसैन इब्ने अली ने कहा बच्चों देखो, अगर तुम्हारे माँ बाप सालिमों के डर से हमारे लाशों को दफन न कर पाए, हुसैन की गुर्बत महसूस कीजिएगा, अगर तुम्हारे माँ बाप जालिमों के डर से हमारे लाशों को दफन करने न आए, ए बच्चों तुम खेलते खेलते आना, मुट्ठी भर मिट्टी उठाना, हमारी लाशों पे डाल देना। उसके बाद हुसैन उठे, बच्चों ठहरो मैं भी आया। हुसैन खेमे में गए, एक बच्चे को लेकर गोद में आए और बच्चे की एड़ियां हुसैन इब्ने
उन बच्चों को दिखाए, ए बच्चों इन पैरों को पहचान लो। जब ये पैरों वाली लाश नजर आए, बच्चों ने एक सवाल किया, मौला अरे चेहरा दिखाइए ना ताकि पहचान हो जाए। हुसैन ने कलेजे पे हाथ रखा, सर तो कट के नेज़े पे चला जाएगा। अल्लाह अकबर। आखिरी जुमला, आखिरी जुमला, मजलिस तमाम मुसल्लात हो गई। अब महसूस फरमाइए, फिर मैं तसव्वुर दिलाता हूं। जंगल, डरावना जंगल, अहले बैत के घराने के बच्चों की पहली रात, जंगल की साए साए की आवाजें। सोचिए उन बच्चों को नींद आई होगी, बच्चों को माँ ने थपक के सुला दिया, अभी सोए थे कि अचानक से, आखिरी जुमला है ज़ादारो, अचानक से ज़ैनब उठी, हुसैन के खेमे में गई। भैया भैया, शाम होने के बाद खेमों के पीछे से किसी बीबी के रोने की आवाज आ रही है। ए भैया, न जाने कौन बीबी है जो इस दर्द से रो रही है, मेरा कलेजा फटने को हो रहा है। हुसैन ने बहन के हाथ को पकड़ा, खेमे के पीछे लाए, एक बीबी रो रही थी, हाय मेरा मजलूम बेटा, हाय मेरा बेकस बेटा। ए बीबी तू कौन है? हुसैन ने कहा ज़ैनब नहीं पहचाना, हमारी दुखियारी ना फातिमा, हमने मदीना छोड़ा, फातिमा ने तुरबत छोड़ी। वाह मोहम्मद, वाह मुसीबत, मातमे हुसैन।